Good morning all. My name is Rajesh. Today we will discuss the subject Advanced Food Production, semester 4, in which we will discuss the unit 3, Garmange, appetizer and salad. In this PPT, we covered the topic Garmange and appetizer. So we will start with garmanges. Definition. Larder or the garmanger is the department in the hotel that is responsible for storage of perishable food, raw or cooked, preparing and storage of all types of meat, butchery, force meat, sausage, and cold work such as preparation of salad, cold sauce, dressing, and cold souffle. Means garmanger or larder is a department of food production in which chefs will prepare varieties of salad, perishable food, raw, cooked, preparing and storage of all types of meat, butchery, forced meat, sauces, and cold work, such as preparation for the salads, cold sauce, dressing, and cold book. कार्बांजल सेक्शन वो सेक्शन है किचन का जिसके अंदर जो शेफ्स होते हैं दे आर डील विथ सैलेड्स, different types of raw or cooked foods, storage, उनकी preparation, sauces, course meal, cold, cuts और उससे रिलेटेड ड्रेसिंग को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं. हर होटल में गार्मांजर सेक्शन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए. इक्विपमेंट्स फाउंड इन द गार्मांजर सेक्शन. गार्मांजर में इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो शेफ्स यूज करते हैं उनको बनाने के लिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. पहला है मिंसिंग मशीन. These two machines have an important function in the larder. This includes the mincing of raw meats for sauces and burgers, meatloaf, mincing of fat prior to the rendering for dripping and other minced meat preparation. मिंसिंग मशीन जो कि यूज की जाती है मटन मिन्स करने के लिए, मीट को किसी भी का चिकन का मिन्स हो, मटन का हो, लैम का हो, फिर उसको डिफरेंट शेप में हम कन्वर्ट करते हैं. जैसे हैमबर्गर का बनाने के लिए हुआ, बर्गर की टिक्की हो गई या लूप्स के अंदर स्टफ करने के लिए. तो उस मशीन के द्वारा हम जो मीट है उसको मिन्स करते हैं, फिर उसका डिफरेंट यूजेस अकॉर्डिंग टू द डिश और अकॉर्डिंग टू द यूजेस ऑफ शेफ यूटिलाइजेशन होता है. सेकेंड वन इज ग्रेविटी स्लाइसर. द मशीन इज यूज फॉर कटिंग स्लाइसिंग ऑफ कुक्ड मीट such as ham or turkey or any other joints of meat that must be boneless. It is also used for cutting bacon or game. It is also used in slicing of vegetable etc. for that. ग्रेविटी स्लाइसर एक की मशीन होती है जो कि यूज किया जाता है कुक्ड मीट को कट करने के लिए. हैम हो गया, बैकन हो गया, उसको हम बोनलेस, बट वो बोनलेस होना चाहिए, उसको डिफरेंट शेप में हम कट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस. नेक्स्ट वन इज स्केल एंड वेइंग मशीन. लार्ज प्लेटफॉर्म स्केल्स फॉर वेइंग लार्ज joints of meat or other heavy weights are obtained. For leisure user we can use a smaller scale. मीन्स वेइंग मशीन और वेइंग स्केल्स यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज
एक लार्ज होता है, एक स्मॉल स्केल होता है। हैवी ज्वाइंट्स को यूज़ करने के लिए हम लार्ज स्केल यूज़ करते हैं, ज़्यादा वेट वाली चीज़ों को वेट करने के लिए, और छोटे वाले के लिए छोटा जो लार्ज स्केल होता है वो हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ingredient. Next is butcher's block. These are used for all butchery work, jointing and cutting meats, as well as cutting fats, breaking and chopping board, etc. Since butcher block एक सेक्शन होता है, टेबल्स लगे होते हैं उनका ब्लॉक, जहाँ पे वो बुच्ची से रिलेटेड सारा वर्क करते हैं। कटिंग ऑफ मीट, डी ज्वाइंट करना, उसके फैट्स को करना, चॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे की जाती हैं। Next one is bone or meat saw. To cut large joints of meat along with bone, example steak, use frozen meat, always wear safety gloves while handling. मीट सॉ कौन से यूज किया जाता है मीट को, लार्ज जॉइंट्स को कट करने के लिए, जो फ्रोजन मीट है उनको कट करने के लिए। इसको यूज करने से पहले हमेशा आप ग्लव्स और प्रॉपर सेफ्टी गियर यूज करेंगे। Next one is buffalo chopper, a commercially machine used for heavy loads of food, serving all the function of a food processor. Buffalo chopper है, बेसिकली इसका यूज किया जाता है चॉपिंग करने के लिए। Next one is chopping boards and knife sanitizers. This is important as most cold meat platters have a salad green which is raw, served with meats. This is also required in cutting, butchering meats before vacuum and sealing. चॉपिंग बोर्ड और नाइफ सैनिटाइजर, इनका यूज जनरली हम करते हैं कटिंग पे रख के, चॉपिंग बोर्ड पे आप कटिंग करते हो किसी भी चीज़ को रखते हो, चाहे सैलेड की प्रिपरेशन है, चाहे मीट या कोई चीज़, मेक श्योर कि वो सैनिटाइज किया हुआ हो, साफ हो बिल्कुल, बिकॉज रेडी टू ईट फूड मोस्टली कम फ्रॉम द नॉर्मल सेक्शन, तो हमें हाइजीन और सैनिटेशन का भी ध्यान होगा रखना होता है। Now we are discussing about appetizers. Appetizers क्या होता है? आप सभी ने सुना होगा ये वर्ड appetizers, starter. So in this slide we will discuss about the appetizers. Appetizers are finger food usually served prior to a meal or in between meal time, and are also called hors d'oeuvres, starters, and may range from the very simple to the very complex, depending on the occasion and the time devoted to making them. Appetizers generally finger food में स्मॉल फूड्स होते हैं जो कि हैंडी होते हैं, जिनको आप या तो खाना खाने से शुरू में स्टार्टिंग में आप यूज करते हो, या इन बिटवीन मेनवाइल जब आप मील खाते हैं, हैवी मील लेते हैं, उसके बीच में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। वो ओडोब्स भी हो सकता है, हम उसके स्टार्टर्स भी बोलते हैं, एंड इसमें रेंज स्टार्टर फ्रॉम वेरी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कि एक छोटा सा कोई डिश से लेके कॉम्प्लेक्स डिश आप जब कोई भी बनाए, डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन, डिपेंड करता है कि वो किस ओकेजन, किस टाइम और किस चीज के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट वी विल डिस्कसिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपेटाइजर। एपेटाइजर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? Appetizer should be big on flavor, small on size and nice. Appetizer होना चाहिए always been small in size, छोटा हो, handy हो, तो easily खाया जा सके, but big on flavor means flavorful होना जरूरी है, because जो appetizer का वर्क है to increase appetite इन योर माउथ, आपकी भूख को बढ़ाने के लिए हम जनरली एपेटाइजर खाते हैं। सेकेंड पॉइंट, रेंज फ्रॉम द वेरी सिंपल टू ए वेरी कॉम्प्लेक्स, छोटे से सिंपल फूड से लेके कॉम्प्लेक्स फूड तक भी हम एपेटाइजर में यूज करते हैं। सिंपल इन द मीन, सपोज वन कुकीज को आपने उसके ऊपर कुछ टॉपिंग डाल के खा लिया, वो एक एपेटाइजर हो सकता है, या आपने कोई कैनपीज खाई हो, वो भी एपेटाइजर हो सकता है, या कोई कॉम्प्लेक्स आपने एपेटाइजर खाया। देयर आर कॉमन अकम्पनीमेंट्स टू एपेटिक्स कॉकटेल्स सर्व प्रायर टू मील। कुछ कॉमन है कंपनीमेंट्स एपेटिक्स
cocktails which are very small in size, which will serve prior to meal. कोई भी हैवी मील खाने से पहले इसके प्रायर में जो हम खाते हैं टू इंक्रीज आवर एपेटाइट, खाने से पहले आप बोल सकते हो आसान शब्दों में कि भूख को बढ़ाने के लिए जो हम छोटा सा स्नैक्स आइटम खाते हैं उसको हम एपेटाइजर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइजर, अब टाइजर को हमने क्लासिफाइड किया है 6 उसमें, कॉकटेल्स, ओदोप्स, कैनापी, सैलेड, सूप एंड कंसोमे, चिप्स। कॉकटेल से मतलब है बेवरेज कॉकटेल नहीं है, स्मॉल टिटबिट्स आइटम विच वी हैव टू बी यूज्ड विद बैंक्वेट्स, फंक्शन में आप जाते हैं, टिक्की हो गई, छोटा सा कोई फ्राई खा लिया, कम्स अंडर द कॉकटेल। ओदोप्स मीन्स स्मॉल स्टार्टर, फर्स्ट कोर्स ऑफ द मील। याद होगा जब आपने फ्रेंच क्लास कल मेनू पढ़ाया तो ओदोप्स कम्स एज एन फर्स्ट कोर्स ऑफ मील, मीन्स स्मॉल टिटबिट्स। कैनापीज, salad, salad is a, although salad comes under appetizer, salad comes under, although salad comes under as a main course, salad as an accompaniment। तो सैलड का बहुत सारा वर्सेटाइल यूज है फूड में। सूप्स एंड कंसोमे, सूप और सूप की वैरायटी जहां हम को भी एपेटाइजर के उसमें इंक्लूड करते हैं। चिप्स, जो नॉर्मल चिप्स एंड डिप्स आप खाते हैं वो भी, दे ऑल आर कम्स अंडर द एपेटाइजर एंड फ्यू आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एपेटाइजर। Thank you for listening this video.